Every year on August 15, we commemorate the day our nation was finally free from the colonial rule. And this year we are going to celebrate the civic and patriotism. Let's begin with the march parade by our NCC cadets, led by Ravneet Kaur of 9th P, accompanied by Manveer Kaur, Harleen, Gurman Singh and Harmanjeet Singh, who will escort our Honorable Director, Mrs. Prabjot Garewal. With pride. Now it's time to unfurl our national flag, a symbol of our nation's unity and pride. We request Now we request our respected director, Mrs. Prabjot Garewal, to hoist the flag and start our celebrations. Now let's unite and sing our national anthem with passion. Our national anthem always fills us with pride. Now I call upon... If the ground beneath your feet could speak, it would not tell you fairy tales. It would tell you about the blood that's soaked into it. The blood and the sacrifice of the soldiers, the freedom fighters who bought the life you are living today. Good morning, respected Director Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends. Today, we are gathered to remember this day was not born out of joy. It was born out of pain, struggle and sacrifice. This day marks the victory of freedom over oppression, of courage over fear,
World Division. From Mahatma Gandhi's non-violent resistance to Bhagat Singh and Udham Singh's bravery, to unwavering determination of Netaji Subhash Chandra Bose to Rani Lakshmibai's fearless leadership, and countless others who played a crucial role to give us this gift of freedom. And our heroes freed our nation from colonial rule, and our nation became independent on 15th August 1947. Independence is not just a celebration of our past, it is a reminder of our responsibilities towards our nation's future. As young Indians, we must remember, patriotism is not just a one-day event, it is a reminder of our responsibilities. Let's pledge to uphold the values of our Constitution, to respect the diversity of our nation, and to work towards the progress and prosperity of our country. Let's remember that our nation's strength lies in its unity. Let us strive to be the change makers, the innovators, and the leaders who will take our future to new heights. Looking at the flag, let us take a moment to salute the bravery and the sacrifice and the spirit of our nation. Let us bow our heads in respect and let our hearts beat as one, united for our love for our nation. Vande Mataram, Jai Hind.
पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल बोले पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल बोले हम लाला जी की मौत का बदला लेके रहेंगे। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके घर में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जारी जा रहा था। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। सब कह रहे हैं कि हमारी आखिरी मुलाकात है। भक्तिया तू जा, मैं नहीं रहूंगी। ये कुर्बानी भी तो तू अपनी भारत माँ के लिए ही दे रहा है। मैं खुश हूँ। जाओ, इनकलाब जिंदाबाद बोलना ना भूली। तू जा, तू जा। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे। आपकी बात तो ना होगी, हम एक बार कल मिला चाहते हैं। बसंती चोला माए रंग दे। बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे। बसंती चोला माए रंग दे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए
देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। It was a wonderful performance. प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की पावन भूमि में हुआ और उनकी जीवन यात्रा ने अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। आज से उनकी शिक्षाएं और लीलाएं हमें प्रेरित करती हैं। मैं आज इस अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म को बयां करेगी। कृष्ण की लीला अनोखी, जन्म भी अनमेल था। कृष्ण की लीला अनोखी, जन्म भी अनमेल था। कृष्ण का पालन अलग, वह खेल भी बेमेल था। जन्म कारा में हुआ, बंदिनी जननी जहाँ थी। जन्म कारा में हुआ, बंदिनी जननी जहाँ थी। पिता भी थे बेड़ियों में बल, बिलखना निश्चिन जहाँ था। आस जिनको थी नहीं मुक्त होने की जेल से, विश्वास केवल था केवल संतान होंगी कंस के आदेश से। पूरब में मारी गई संतानें जो मारी गई, पूरब में मारी गई संतानें जो मारी गई। था विशेष प्रबंध का 8वें संतान को ही जन्म थे। 8वां सुख जब हुआ काली अंधेरी रात थी। 8वां सुख जब हुआ काली अंधेरी रात थी। बरसातें चारों ओर थी, यमुना नदी में बाढ़ थी। अष्टमी थी भाद्रपद था, अष्टमी थी भाद्रपद था। प्रहर निशा का मध्य था, प्रहरी सभी थे नींद में, बंधन रहित महादेव की। देवकी नंदन हुए आनंद में वासुदेव थे। आकाशवाणी से मिले संदेश से अनुलेख थे। ऐसे अनोखे वक्त में देवकी को सुख था मिला। मुख देख सुख का डर गई, इस जन्म का भी क्या ही सिला। पर विचित्र सी बात थी इस पुत्र के इस जन्म में, पर विचित्र सी बात थी इस पुत्र के इस जन्म में। आकाश से आई गिरा, ले जाओ सुख को संग में। गोकुल चलो आनंद से, नंद बाबा को मिलो। है सुता जन्मी वहाँ, लाओ सुलाओ संग में। जैसे हो ठहरा वक्त भी वसुदेव के हाथ में, यमुना बड़ी उन्मुख हो स्पर्श करने बात से। कृष्ण गोकुल में हुए कुछ